Class 10 Geography Chapter 2 Part 2 Chapter 2 Part 2 Any Are colonial forest policies to be blamed? Colonial forest policies to be blamed? क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? देखिए, some of our environmental activists say that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through has been carried through the ironic term enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extremely planted and other species eliminated. For instance, teak monoculture. Teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and cheer pine, Pinus roxburghi plantation in the Himalayas have replaced the Himalayan oak, Curiceus sap, and rhododendron forest. इसके लिए हम देखें कि क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एक कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पहले की दूसरी जातियां खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए, और हिमालय में चीर पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेड्रोन वनों का नुकसान हुआ है। देखिए, लार्ज स्केल डेवलपमेंट की जो बात यहाँ पर की गई है, large scale development project have also contributed significantly to the loss of forest. Since 1951, over 5,000 square kilometers of forest was cleared for river valley projects. Cleaning, clearing, clearing, clearing of forest is still continuing with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 hectares of forest. Mining is another important factor behind deforestation. The Baksa Tiger Reserve in the West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. The Baksa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. It has distributed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others, including the great Indian elephant. यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है, और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। यहाँ पर देखिए क्या कि मैनी फॉरेस्टर्स, जो यहाँ पे खास चीज़ आपको दी गई उसको यहाँ पर देखिए।
देखिए many forester and environmentalists hold the view. Many forester and environmentalists hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resource are grazing and fuel wood collection. Though there may be some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by filling entire trees. The forest ecosystem are repositories. The forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals, and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. These protected areas does mean different things to different people, and therein lies the fertile ground for conflict. बहुत से वन अधिकारी देखिए बहुत से अधिकारी और वो इसको फॉरेस्ट वन अधिकारी जिसे कहते हैं, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविदियाँ मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादियों को पशुचारण और ईंधन की लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ की टहनियाँ काट कर की जाती है, ना कि पूरे पेड़ काट कर। वन पारिस्थितिकी तंत्र वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिज और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र देखिए यहाँ पर क्या है, ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने रखते हैं। ये आरक्षित क्षेत्र आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। फिर आपको आगे देखिए द हिमालयन यू इन ट्रबल ये कहा गया है। हिमालयन यब संकट में, देखिए द हिमालयन यब संकट में, द हिमालयन यब इंट्रोवर की बात, हिमालय यब संकट में देखिए द हिमालयन यब टेक्सास वॉलेंटिना इज ए medicinal plant found in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. A chemical compound called taxol is extracted from the bark, needles, twigs, and roots of this tree, and it has been successfully used to treat some cancers. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. The species is under great threat due to overexploitation. In the last one decade, thousands of your trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. यहाँ हिमालय यब चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पैर की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोर नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जगत को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आपको यब के हजारों पेड़ सूख गए हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया एक इमेज यहाँ पर शो किया गया। देखिए द इमेज ट्राइबल गर्ल्स, देखिए यहाँ पर क्या ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बम्बू सैपलिंग इन अ नर्सरी एट मुखाली नियर साइलेंट वैली। यहाँ जो इमेज आपको शो किया, इसमें एक कहा गया कि जो शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस की पौधा लगाते हुए। तो शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हुए। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा क्या कि ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमेन फॉक। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं सूखी पत्तियों एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। फिर आपको आगे यहाँ पर
हो गया। इसके बाद आपको जो इमेज चलते हैं, आप देखिए हैबिटेट, यहाँ पे देखिए क्या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, environmental pollution, poisoning, and forest fires are factors which have led to the decline in India's biodiversity. Other important cause of environmental destruction are inequitable consumption of resource and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume. They consume than the poorest 25%. The former say मतलब the richers share minimum responsibility for environmental well-being. The question is who is consuming what, from where, and how much. यहाँ पर जो आपको कहा गया उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए। तो इसमें जो कहा गया क्या कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन जीव के आवास का बिना, देखिए भारत के जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, आकेठन, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं विषाक्तीकरण, दावानल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा एवं उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधनों का उपयोग अपने गरीब लोगों की तुलना में अपने अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रश्न यह है कि कौन क्या कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। तो यहाँ पे एक जो खास बात है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू देखिए यहाँ पर कहा गया क्या, डू यू नो, देखिए दैट डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, वन थर्ड ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेनेड आउट्स, 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूटेड, 40% ऑफ मैनग्रोव्स वाइप्ड आउट, with continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plants, thousands of plants and animal species are heading towards extinction. देखिए यहाँ आपको कहा गया क्या, क्या आप जानते हैं कि भारत के आदेश अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। एक तिहाई जलमग्न भूमि, जिसको वेटलैंड बोलते हैं, सूख चुकी है। जलमग्न भूमि को वेटलैंड बोलते हैं, सूख चुकी है। 70% धातुए जल क्षेत्र वाटर बॉडीज प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधे कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो फिर आपको एक्टिविटी की बात करते हैं। हैव यू नोटिस एनी एक्टिविटी विच लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू, राइट ए नोट ऑन इट एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट इट। यहाँ पर जो कहा गया, देखिए क्या आपने यहाँ पर जो आपको कहा है, क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियाँ देखी है जिससे जैव विविधता कम होती है। इस पर एक टिप्पणी लिखे और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाए। तो यहाँ पर जो खास बात है आपको कहा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू, the biological loss is a
the biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. Such losses have increasingly marginalized and impoverished and many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. Within the poor, women are affected more than men. In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water, and other basic subsistence need. Has these resources are depleted, the druid of women increase, and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. This causes serious health problems for women and negligence of home and children because of the increased hours of works, which often has serious social implications. The indirect impact of degradation, such as severe drought or deforestation, induced floods, etc. In this, it is also hits the poor the hardest. Poverty in these cases is direct outcome of environmental destruction. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the an environment in the subcontinent is and subcontinent. It is imperative to adapt to a sound forest and wildlife conservation strategies. यहाँ पे जो कहा गया था कि वनों और वन जीवन का विनाश विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय नहीं है। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप में क्या आपने जो यहाँ पे एक्टिविटी आपको शो की गई है, जो एक्टिविटी आपको, हैव यू नोटिस एनी एक्टिविटी सच लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू, राइट ए नोट ऑन इट एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट इट। क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियाँ देखी है जिससे जैव विविधता कम होती है? इस पर एक टिप्पणी लिखें और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाएं। यहाँ पे जो कहा गया था कि अब इसकी बात करें तो मुख्य मुद्दों की बात कर लेते हैं यहाँ पे इस इंग्लिश में कि हम देखिए जीवन का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों के तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों में कमी होती जा रही है जैसे इन संसाधनों में कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। तो फिर आपको आगे जो यहाँ पे आपको कहा गया
देखिए कंजर्वेशन ऑफ द बैकग्राउंड कंजर्वेशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन and forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? Conservation preserves the ecological diversity. Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air, and soil. Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air, and soil. It also preserves the genetic diversity of plants, animals for better growth of species and breeding. For example, like in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया इससे पहले यहाँ पर जो आपको लिखा गया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण। देखिए भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण यहाँ पे देखिए वन और देखिए वन जीवन और वनों में तेज गति वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साथ संसाधन जलवायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी सुरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधताएं मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। अब देखिए फिशरीज टू आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। फिर आपको आगे का इन 1960 डिकेट्स एंड 1970 डिकेट्स कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, देखिए विथ वैलियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स and all India list of protected species was also published. The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by by banning giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. Subsequently, central and many state government established national parks and wildlife sanctuaries, about which you have already studied. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag, or hangul. Three types of crocodiles: freshwater crocodiles, saltwater crocodiles, and gharial, the Asiatic lion, and others. Most recently, the Indian elephant, black buck, chinkara, the great Indian bastard, uh, Godwan, Godwin, and snow leopard and leopard etc. have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. यहाँ हम जो आपको कहा इस चीज़ को थोड़ा सा गौर देखिए 1960 और देखिए यहाँ पर क्या 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया, जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण करने के प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर वन जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात या बाद में जिसे बोलते हैं तत्पश्चात केंद्रीय सरकार एवं कई
तत्पर केंद्रीय सरकार एवं कई राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी मतलब पशु विहार जिसे बोलते हैं सेंचुरी स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, कश्मीरी हिरन, अगवा अथवा कश्मीरी हिरन अथवा हंगूल 3 प्रकार का मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। और आपको घड़ियाल और घड़ियाल, एशियाई शेर देखिए घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी आपको शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोटावन जिसको बास्टर बोलते हैं और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार और संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। फिर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की भी यहाँ पे आपको बात की गई, प्रोजेक्ट टाइगर की भी आप देख लेते थोड़ा सा। देखिए टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड टाइप। देखिए टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड टाइप स्पीशीज इन द faunal देखिए इन द faunal web in 1973 the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. The major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitats, depletion of prey-based species, growing human population, the trade of tiger skins, and use of their bones in traditional medicine, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. Since India and Nepal provide habitat to about two-thirds of the surviving tiger population in the world, these two nations became prime targets for poaching and illegal trading. देखिए यहाँ पर जो इलीगल ट्रेडिंग प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ और फिर आपको प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड was launched in 1973. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species, but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarbans National Park in West Bengal, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर बाघ परियोजना की जो बात की उसको यहाँ पर आपको देखिए वन जीवन संरक्षण देखिए यहाँ पर क्या कि वन जीवन संरचना में देखिए वन जीवन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मार उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण ये जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी प्रतिबंध व्यापार प्रति अतः गैर कानूनी अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार सेंचुरी, असम में आपको मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बांध रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे
कहा गया। तो कुछ इमेज यहाँ पे आपको शो किया गया है। यहाँ पे एक पहला जो इमेज आप देख रहे हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन का यहाँ पे इमेज शो किया गया है। देखिए राइनो देखिए गैंडा को बोलते हैं राइनो एंड डियर, मतलब हिरनों राइनो एंड डियर इन काजीरंगा नेशनल पार्क आपके यहाँ पर है। तो फिर आपको इसके बाद यहाँ पर जो आपको टाइगर लीगल के बाद द कंजर्वेशन, देखिए द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. There is no a more intensive search for different conservation measures. Even insects are beginning to find a place in conservation planning. Notification under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time, plants were also adopted. In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया इसमें देखिए कि आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। आजकल संरक्षण परियोजना जो आपको होती है, आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता संरक्षण के विभिन्न तरीकों की संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। तो वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों और बिरंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधे की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। एक्टिविटी यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, एक्टिविटी आपको उसको यहाँ पर देखिए। Collect more information on the wildlife sanctuaries and national parks of India and cite their location on the map of India. ये देखिए भारत में वन जीवन पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर देखिए भारत वन जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। देखिए टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको देख कहा टाइप्स ऑफ, यहाँ पर जो आपको है क्या कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, it is rather difficult to manage, control and regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. These are classified under the following categories. देखिए यदि हम वन जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में या वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ देखिए क्या रिजर्व फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एक होता है आरक्षित वन जिसे बोलते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या आरक्षित वन होता है, ये क्या होता है देखिए मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट। तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. यहाँ जो कहा गया देखिए आरक्षित वन किसे कहते हैं, देखिए देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणी संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वनों को आपको सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है।
तो पहला आपको देखिए सर्वाधिक मूल्यवान आपको माना जाता है। फिर दूसरा आपको यहाँ पर रक्षित क्षेत्र आपके यहाँ पर आपको दिया गया है। रक्षित क्षेत्र जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। देखिए रक्षित वन क्या होता है? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। रक्षित वन क्षेत्र है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने की इनकी सुरक्षा की जाती है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने की इनकी सुरक्षा की जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है देखिए क्या अनक्लासिड फॉरेस्ट की बात की गई। देखिए अवर्गीकृत वन की बात की गई है। अनक्लासिड फॉरेस्ट की बात की देखिए दीज आर द अदर फॉरेस्ट दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। देखिए अवर्गीकृत वन अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि अन्य सभी प्रकार के अवर्गीकृत वन इसको बोलते हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ देखिए कहा गया देखिए रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड forest are also referred to as a permanent forest estates maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons. Madhya Pradesh has the largest area under the permanent forest constituting 75% of its total forest area. Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Maharashtra have large percentage of reserve forest of its total forest areas, whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha, and Rajasthan have a bulk of it under protected forest. All northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest has unclassed forest managed by local communities. देखिए यहाँ पर आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव आपकी इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त आपको जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा आप यहाँ देखिए जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में सुरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में आपको है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात की, समुदाय और वन संरक्षण की बात की। उससे पहले समुदाय वन संरक्षण पर एक फिगर यहाँ पर जो दिया गया है उसको देख लीजिए फिगर किस बारे में है। देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर है वो आपका घड़ियाल। देखिए यहाँ पर क्या कि घड़ियाल ऑन द ब्रिंक जिसे बोलते हैं। यहाँ पे यह है क्या आप ये जो आपको घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, घड़ियाल जो पानी के किनारे में आपको है या भूमि किनारे पर आपको है। बर्ड्स दैट्स ब्लेम ऑन डर्टी यमुना। अब यहाँ पर कहता है क्या ये बहुत सारे पेपर कटिंग आपको दिया। कैन यू फाइंड आउट द रीजन फॉर द अबव मेंशन प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पर क्या या फिर यहाँ पर क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान कारण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ब्रिंग मतलब किनारा, घड़ियाल किनारे पर है या तट पर है। देखिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात की गई। देखिए समुदाय और वन संरक्षण की बात आपको की गई है। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज इन सम एरियाज ऑफ इंडिया। लोकल communities are struggling to conserve these habitats along with government officials.
that only this will secure their over long term livelihood. In Sarska Tiger Reserve, Rajasthan villagers have fought against mining by cities or the Wildlife Protection Act. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. The inhabitants of five villages in the Arwal district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest had the Bhairav Dev and Bhairav Dev Dakab Sonchuri and declaring their own set of rules and regulations which don't allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment। देखिए वन संरक्षण नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। इसे आमतौर पर इस बात से हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि हम आमतौर पर देखिए इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में आपको राजस्थान के गाँव के लोग वन जीवन रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी है। जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। तो यहाँ पर आगे जो आपको मुख्य बातें आपको कही गई उसमें देखिए इससे पहले आपको जो था पूरी तरह से आपको हो चुका है। तो फिर यहाँ पर आपको देखिए सेक्रेड ग्रोव्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पेसीज की बात आपके यहाँ पर की गई। सेक्रेड ग्रोव्स एंड वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पेसीज आपके यहाँ पर है। लेकिन नेचर वर्शिप इज एन एज एंड ओल्ड। तो जो आपको यहाँ पर आपको है इससे पहले जो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि सैक्रेड ग्रोव्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पेसीज। देखिए सैक्रेड ग्रोव्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पेसीज की बात की गई है। देखिए नेचर वर्शिप इज एन एज ऑल ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। Such beliefs, देखिए such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves. The forest of God and goddess. These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people, and any interference with them is banned. आगे यहाँ देखिए क्या प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय जो विश्वास है। प्रकृति की पूजा देखिए आपको क्या यहाँ पर जो आपको कहा गया कि पवित्र पैरों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि प्रकृति की पूजा देखिए प्रकृति की पूजा ये सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कुमार रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पैरों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते था, ना किसी और। देखिए वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते था, ना किसी और को छेड़छाड़ करने देते। वनों के देखिए यहाँ पर क्या कि वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते
तथा ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। आगे यहाँ पे आपको कहा गया सर्टेन सोसाइटीज, देखिए सर्टेन सोसाइटीज रेवियर, यहाँ देखिए सर्टेन सोसाइटीज रिवियर ए पार्टिकुलर ट्रीज विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम immemorial. The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship Mahua, Besia, Latifolia, and Kadamba, Anthocamphalus, Kadamba trees, and the tribes of Odisha and Bihar worship the Tamarindus indica and Mangifera indica trees during weddings. Too many of us and banyan trees are considered sacred. तो यहाँ पर आपको जो कहा गया, कुछ समाज, देखिए कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातीय, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातीय महुआ और कंदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। अब यहाँ देखिए वट वृक्ष मत बनियान हो गया। देखिए इंडियन सोसाइटीज कंप्राइज सेवरल कल्चर ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants, and animals which are closely protected. You will find troops of macaques and langurs around many temples. They are fed daily and treated as a part of temple devotees. In and around Bishnoi village in Rajasthan, herds of black bucks, chinkara, nilgai, and peacocks can be seen as an integral part of the community, and nobody harms them. देखिए यहाँ पर भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियाँ हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को सुरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे, लंगूर जिसको बोलते हैं यहाँ पर लंगूर्स पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। अब एक एक्टिविटी की बात यहाँ पर आपको की गई है। राइट ए देखिए राइट ए शॉर्ट ऐसे, देखिए राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन एनी प्रैक्टिसेस विच यू मे हैव ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिसाइड इन योर एवरीडे लाइफ्स दैट कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अराउंड यू। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि आप अपने आसपास किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखे जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया एक्टिविटी की बात यहाँ पर क्या, द फेमस चिपको movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are no widespread. Farmers and citizens groups like the Beej Bachao, देखिए बीज बचाओ आंदोलन in Terai and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. तो यहाँ पर आपको देखिए कहा गया क्या कि देखिए हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधे की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है।
टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। इन इंडिया, यहाँ पे देखिए इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM। इन इंडिया देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM बोलते हैं। प्रोग्राम फर्निशेज ए गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ degraded forest. The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। and GFM देखिए GFM depends on the formation of local village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. In return, the member of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produce and share in the timber harvested by successful protection। जो यहाँ पे आपको कहा गया देखिए कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम छरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kinds of natural resources management, but there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making, except only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। देखिए भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियामान होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। तो फिर आपको आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए आगे यहाँ पे आपको देखिए कहा गया कि द पेड़ एक विशेष जो यहाँ पे आपको कहा है देखिए द ट्रीज इज अ पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस एंड मेक्स नो डिमांड्स फॉर sustenance and extend generously and the products of its life activity. It affords protection to all beings, affording offering sad event to the X-Men who destroyed। देखिए पैर एक विशेष गौतम बुद्ध 487 ईस्वी पूर्व में लिखा था। पैर एक विशेष असीमित दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे यहाँ से देखिए चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। इसके बाद आपको चैप्टर तो वाटर रिसोर्सेज की बात आप यहाँ देखिए जल संसाधन जिसे बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज की बात वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन चैप्टर 3 आपको क्लास 10 ज्योग्राफी ये है क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन की बात क्या यहाँ पर की गई है। जल संसाधन की बात यहाँ पर की गई। देखिए हे पिंकी यहाँ पर देखिए हे पिंकी डिड यू सी जल संसाधन वाटर
यहाँ पे देखिए क्या कि हे पिंकी डिड यू सी दोज ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड्स इन असम माय गॉड व्हाट हैवॉक दे हैव क्रिएटेड इट एज डिस्ट्रॉयड एंड स्वेप्ट अवे एवरीथिंग इन इट्स पार्ट्स। देखिए पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया, रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गया। यस चिंटू, देखिए यस चिंटू, आई डिडंट, देखिए आई डिड मैंने देखा, इजंट इट स्ट्रेंज दैट वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। देखिए व्हाट वुड वी डू विदाउट वाटर? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक आवर फूड, wash our clothes and wash ourselves as well. My father was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things. Did you know that? Did you know that even need water for cooling the machines? In fact, the factory runs on the power supplied by the hydel power plant. No, I can understand why through the age we humans have chosen to live near water courses along the river and other water sources like lakes, ponds, and oases. हाँ चिंटू, मैंने देखा, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि है कि जल जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। काफ़ी जल की आवश्यकता है, बहुत सारी मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे। देखिए अब क्या कि मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के जल के लिए क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकताएँ होती हैं। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई है, बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियाँ और अन्य जल स्रोत जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुस्थल के आसपास क्यों बसता था। हाँ, तो यहाँ पर देखिए यू ऑलरेडी नो, देयर 3/4 ऑफ द अर्थ्स सरफेस। देखिए क्या यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually. Uh, this mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य और लवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अफवाह और भूमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। फिर देखिए यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर एंड वाटर यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर एंड वाटर इज a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live
इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए वाटर स्कार्सिटी एंड एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात की गई है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता पर यहाँ चर्चा की गई है। देखिए वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट यहाँ पे देखिए जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता की बात आपके यहाँ पर की गई है। Given the abundance and renewability, given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine. That we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas, earthen posts used for collecting and storing water and traveling long distance to get water. To the availability of water resource varies from space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation. But water scarcity in most cases is caused by overexploitation, excessive use, and unequal access to water among different social groups. देखिए यहाँ जो आपको इसका हिंदी देखिए जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता की बात की गई यहाँ पे। देखिए जल की विशाल भंडार और इसके नमीकरण योग जल के विशाल भंडार जल की विशाल भंडार और इसके नमीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पर्वत तंत्र राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नताएं हैं, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण आपको होती है। वेयर इज देन देखिए वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर हैज यू हैव रीड as you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained direct. Fresh water can be obtained directly. Fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff, and groundwater. Is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? Many of our sites are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and population and consequent greater demands for water and unequal access to it. A large population requires more water, and not only for domestic use but also to produce more food. Hence to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand. Water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is the largest consumer of water.
Irrigated agriculture is the largest consumer of water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistant crops and dry farming techniques. You may have seen in many television advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. Have you ever wonder what this could result in? And that it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people. यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको खास चीज़ आपको कहेगी उसको देखिए यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर जो आपको बातें आपको उठाई गई हैं। देखिए जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते भी इसके नवीकरण योग्य गुणों को होते भी यह भी सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिकी और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नताएं हैं। परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण आपको होती है। फिर आपको आगे देखिए क्या यह संभव है किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल और संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? देखिए हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं। दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। हो सकता है अधिक जनसंख्या के लिए के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज उत्पादन बढ़ाने के जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। देखिए और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। अब कृषि क्षेत्र में आपको क्रांति लाने की आपको है। तो फिर आपको यहाँ आगे जो कहा गया मोस्ट फार्मर्स आवश्यकता है। फिर आगे यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएँ और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि का जल स्तर भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया। देखिए आगे जो यहाँ पे आपको शो क्या है कि उसको यहाँ देखिए एक इमेज आपके यहाँ पे देखिए वाटर एवरीवेयर वाटर। देखिए वाटर एवरीवेयर वाटर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक आफ्टर ए हैवी डॉन पाउड ए बॉय कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता लाइफ इन द सिटी एंड its adjacent district was paralyzed has incessant overnight rain, meaning a record 180 millimeter flooded vast area and disrupted traffic। यहाँ पर फिर आगे आपको कहा गया इस इमेज आपके यहाँ पर देखिए कि ये इमेज आपके यहाँ पर है क्या
उसके बाद देखिए क्या है, एक कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवास्टेटेड विलेज। तो फिर आपको आगे यहाँ पर दूसरा इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए कि देखिए एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है। समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती है। यही मूल कारण है जलीय अभाव के। देखो यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे आपको जिसमें जो आपको कहा गया उस वही सेम बात यहाँ पर कही गई है। तो पानी कमी या दुर्लभता देखिए वाटर स्कार्सिटी का इमेज ये शो किया गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर आपको कहेंगे उसको यहाँ देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट देखिए यहाँ पर क्या कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर हैज कॉमन प्लेस हैज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी MNCs multinational corporation. The ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources. Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them. Much of this energy comes from hydroelectric power. Today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity produced. Moreover, multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem. If you look into the housing societies, if you look यहाँ पे क्या है कि if you look into the housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आज का हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई है। औद्योगिक बढ़ती हुई संख्या के कारण आपको अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अलवणीय जल संसाधन दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकताएं होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए अब तक हमने देखिए सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। देखिए नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द
people. But the area still suffer from water scarcity. This scarcity may be due to bad quality of water. Lately there has been a growing concern that even if there is a sample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted. Much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemical pesticide and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. Government of India has accorded highest priority to improve the quality of life and enhance easy of living of people, especially those living in rural areas, by announcing the Jal Jeevan Mission (JJM). The goal of JJM Jal Jeevan Mission is to enable every rural household get assured supply of portable pipe water at a service level of 55 liters per capita per day regularly on a long-term basis by ensuring functionality of the tap water connection सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को यहाँ पर पेज एकदम दर्शाया गया था। अब यहाँ देखिए, अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है और मानव उपयोग के लिए क्या है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। देखिए यहाँ पर क्या, तो फिर आपको आगे मानव उपयोग के लिए क्या है कि मानव उपयोग के लिए आपको खतरनाक है। आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लाइन है वो हिंदी में नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनहांस ईजी ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, especially those living in rural areas, by announcing the Jal Jeevan Mission (JJM). The goal of JJM is to enable every rural household get assured supply of potable pipe water at a service level of 55 liters per capita per day regularly on the long term basis by ensuring functionality of the tap water connection। ये आपके यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर एक जो आप ये जो लाइन आपको यहाँ पर था, ये लाइन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जो गवर्नमेंट का जो स्टेप यहाँ पर दिखाया गया, ये स्टेप आपको हिंदी में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए देखिए इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्नेड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स एंड इवन द बिग वंस लाइक द गंगा एंड यमुना are far from being pure. The assault on India's rivers, from population growth, agriculture modernization, urbanization, and industrialization, is enormous and growing by the day. This entire life threatened। देखिए भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सहायताएँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन बढ़ता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट you may have you may you may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resource to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem
system. Over exploitation and mismanagement of water resources will impoverish over exploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives। यहाँ देखिए कि आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारतंत्रों को निम्नलिखित डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए एक्टिविटी की जो बात की उसमें आप यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप जो आपके यहाँ पर है कि फ्रॉम योर एवरीडे एक्सपीरियंसेस राइट ए शॉर्ट प्रपोजल ऑन हाउ यू कैन कंजर्व वाटर। देखिए अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। फिर आपको आगे कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज। देखिए यहाँ पर क्या कि मल्टीपर्पज, देखिए यहाँ पर क्या है कि मल्टी पर्पस आपको यहाँ पर जो आपको कहा गया मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए यहाँ पर बट हाउ डू वी, देखिए मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structure like dams built of stone, rubber reservoirs or lakes, embankment and canals for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? हम जल का संरक्षण प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंधों और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने अपने आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। अब आके देखिए यहाँ पर क्या एक यहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक दिया गया है कि प्राचीन भारत में देखिए प्राचीन भारत में आपको जलीय कृतियाँ आपके यहाँ पर है। इससे पहले इसमें देखिए क्या ये बड़ा एक्टिविटी आपकी इसमें है, बिल्कुल आपको इसमें आपको है। ये यहाँ पर आपको देखिए आपको हो सकता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पर अंग्रेजी में आपको की गई थी, तो यहाँ पर आपको इससे पहले आपको छोड़ दीजिए। देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन इंडियन, देखिए यहाँ पर आपको उसी की बात की गई। देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया में जो आपको बात उसको यहाँ पर देख लीजिए। हाइड्रोलिक देखिए प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, देखिए प्राचीन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ देखिए। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC श्रृंगेवेरा, देखिए श्रृंगेवेरापुरा नियर इलाहाबाद हैड अ सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य डैम्स, लैक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। फिर यहाँ पर आपको कहता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य during the evidence of sophisticated
ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या कि एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग, ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश एंड बेन्नूर, देखिए बेन्नूर बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र etc। यहाँ देखिए क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। फिर कहते हैं कि कलिंग ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। इन द 11th century, भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम, वाज बिल्ट। अपने समय के सबसे बड़े कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इन द 14th century, द टैंक इन हौज खास, दिल्ली, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। देखिए क्या 14वीं शताब्दी इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र जल 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। एक विशिष्ट तालाब बनवाया, देखिए यहाँ पे एक विशिष्ट तालाब बनवाया जिसको बोलते हैं डाइंग विजडम, आपको सोर्स में यहाँ पर लिखा गया था। अब यहाँ पे एक खास जो आपको देखिए, अब एक खास और एक्टिविटी जो आप यहाँ पर दिया गया था, वी हैव सोन द क्रॉप्स फिन, देखिए यहाँ पर आपको है दूसरा भी आपको ए डैम, यहाँ पर देखिए ए डैम इज ए, इस चीज़ को थोड़ा सा कंप्लीट ही आपको यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ए डैम इज बैरियर, ए डैम इज बैरियर, देखिए बांध बहते जल को रोकने। तो इसको यहीं पर आप रोकिए, देखिए इस चीज़ को यहाँ पर फिलहाल के लिए यहीं तक इसको रोकिए, इसके आगे जो पढ़ाई होगी वो अगले वीडियो में कर लेंगे।